Assalamu alaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine. By the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Myself, Mr. Vidya Gohar, your science teacher. While student, in the previous lecture I have sent you the PDF and I have given you the work, and I have told you that to complete your work as I have directed you when you were in school. And I hope that you have completed your work, and you will send your copies to me soon. In today's lecture, we will do our workbook work. Okay, the chapter we have completed in the previous lectures, we will do the workbook work of that chapter. That is your chapter number 8. So without wasting our time, let's open your books. Open chapter number 8, that is food and digestion. Okay, this is chapter number 5. And that is 7, and open page number 46. Here on page number 46, we have our first question, that is, state whether the following statements are true or false. You have just to give the answer whether the statement is true or false, but I will also tell you what is the right statement. Okay, so number 1, I'm gonna read number 1. The bladder is part of digestive system because it gets rid of excess water from the body. Okay, the bladder. Okay, the question is that whether the bladder is part of digestive tract or digestive system. No, that is false. Your bladder is a part of your urinary or excretory system. Okay, it is not part of your digestive system. It is a part of your excretory system. EXCRETORY. Okay, it is not mandatory, but I am telling you because you should know what is the right answer. Okay, number 2. In a balanced diet, mineral salts are required in large quantity. Okay, means to say in balanced diet you require a large quantity of mineral salt, that you have to consume large quantity of mineral salt. That is false. You have to use or require a small quantity, not a large one. Okay, which quantity? Small quantity. मीन्स बैलेंस डाइट में आपको मिनरल सॉल्ट कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है? स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है. और आपका ब्लैडर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, बल्कि वो किसका हिस्सा है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है. नाउ number 3, enzymes are biological catalyst which slow down chemical reaction. That is also false. Your enzymes are part of digestive system. Part of digestive system. Your enzymes are biological catalyst. That is true, but it speed up the chemical reaction. Okay, it's not slow down but speed up the chemical reactions. Your enzymes are biological catalyst. They catalyst क्या करते हैं? आपके रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एनर्जी को, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि एनर्जी की जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है पर्टिकुलर रिएक्शन स्टार्ट करने में, उसे कम करते हैं. नंबर 4, फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइपेज इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल. दैट इज ट्रू. फैट आपके क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं लाइपेज. ठीक है, किसमें? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में. नंबर 5, स्टमक एंजाइम्स कैन ओनली वर्क इन एसिडिक कंडीशंस. दैट इज ट्रू. द एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन योर स्टमक, it will always work better in acidic condition. क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, तो आपका जो स्टमक एंजाइम है वो वर्क तभी गुड वर्क करेंगे जब बिट एसिडिक कंडीशन होगी. ओके, नाउ choose the correct option, that is MCQs. You have to choose the best answer which is suitable. Saliva contain acid, amylase, lipase, protease. Which enzyme? Amylase. Okay,
सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज होता है, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है. ओके, विच ऑफ दिस इज नॉट एन एंजाइम? इसमें से कौन सा एंजाइम नहीं है? प्रोटीज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट्स, बाइल. बाइल एंजाइम नहीं है, बाइल सिक्रीशन है. ओके, नंबर 3, लाइपेज इन एंजाइम विच ब्रेक डाउन. लाइपेज लिपिड से निकला, लिपिड एंड फैट्स. ओके, फैट्स को कहते हैं. प्रोटीज प्रोटीन से, ठीक है. स्टार्च एंड शुगर, आपका स्टार्च अमाइलेज एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. सो फैट्स को कौन ब्रेक डाउन करता है? लाइपेज. नंबर 4, एट विच ऑफ दिस टेम्परेचर्स डू एंजाइम वर्क बेस्ट. इसमें कौन सा टेम्परेचर जिस पे एंजाइम बेस्ट वर्क करता है? 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इसमें से कौन सा पार्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है? बाइल डक्ट, रेक्टम, विली एंड हार्ट. डेफिनेटली हार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर digestive system. Okay, it is part of your circulatory system. Okay, now come on page number 47. Here is question number 3. Use these words to fill the gaps in the passage. Okay, the words are given in the bracket in the column. Okay, आपके पास words given है, that is absorbed, bloodstream, digestion, folded, glycerol, plasma, thin, villi. And you have to use these words to fill these blanks. So look carefully. I have done it for you. The end products of digestion are glucose, amino acid, fatty acid and cholesterol. Okay. Number 1 blank में आएगा digestion. Number 2 में cholesterol. यानी कि digestion का end product क्या क्या बन रहा है आपका? Amino acid, fatty acids and cholesterol. You can cross check it from your book as well. Okay, the molecules are absorbed through the walls of the small intestine into the bloodstream. Molecule absorb होते हैं small intestine की wall से blood stream में. किस में? blood stream में. where they are carried in solution, जहाँ से वो solution में जाते हैं, in the plasma में. ठीक है, प्लाज्मा लेकर जाते हैं. ठीक है, कौन से सोल्यूशन में? ब्लड के कौन से पार्ट में जाते हैं? प्लाज्मा में. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड. ठीक है, फोल्डेड होती है एंड कवर्ड इन टाइनी प्रोजेक्शन. छोटे छोटे टाइनी प्रोजेक्शंस होते हैं कॉल्ड, जिन्हें विली कहा जाता है. विच हैव वेरी थिन वॉल्स, जिनकी वॉल्स बहुत पतली होती है. ओके, नंबर 1 ब्लैंक में आएगा डाइजेशन. नंबर 2 में ग्लाइसरॉल. नंबर 3 में एब्जॉर्ब्ड. नंबर 4 में आएगा ब्लड स्ट्रीम. नंबर 5 में आएगा प्लाज्मा. नंबर 6 में आएगा फोल्डेड. नंबर 7 विली एंड नंबर 8 थिन. हियर इज 2 3 4 5 6 7 8 words are given. We have used these 8 words to fill the gaps which is given in your book. Okay, number 4. The diagram shows the amount of carbohydrate, fat, protein and water in some food. कुछ फूड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर की क्वांटिटी दिखाई गई है. Here लाइन्स क्या शो कर रही हैं? कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन शो कर रही है. प्रोटीन जो ब्लैक वाला पार्ट है, देखिए इसको कंसीडर कर ले. इसको ये लाइन्स हैं, ये आपको कार्बोहाइड्रेट शो कर रहे हैं. ये जो लाइन है ब्लैक, ये क्या शो कर रही है? प्रोटीन. और ये जो डॉट्स हैं वो आपके क्या है? फैट्स हैं. और जो ब्लैंक पोर्शन है वो क्या है? वाटर है. ओके, नेम 2 फूड शो इन द डायग्राम विच कंटेन अ लॉट ऑफ, यानी कि 2 फूड का नाम बताएं जिसमें ज्यादा क्या है? कार्बोहाइड्रेट. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में? इन डायग्राम्स को चेक करें. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में है? आपकी ब्रेड में. ठीक है, देन चेक इट आउट. लाइंस किस में ज्यादा है? ठीक है, और आपके स्वीट बिस्किट में. ठीक है, कंपेयर करें आप सबको. ठीक है, आपके ब्रेड में सबसे ज्यादा आपका 2 फूड्स का नाम बताना. ठीक है, तो आपके स्वीट बिस्किट एंड ब्रेड. नंबर 2 फैट्स किस में ज्यादा है? तो फैट क्या है? डॉटेड एरिया चेक करो किस में सबसे ज्यादा है. चेक इट आउट.
हियर मिल्क में फैट्स हैं आपके, ब्रेड में नहीं है, ऑरेंजेस में नहीं है, आपके मीट में कम पोर्शन है, आपके स्वीट बिस्किट में है, आपके एग में है, आपके वाइट फिश में, आपकी चेडर चीज में है, और आपके किस में सबसे ज्यादा है, तो आपके मिल्क एंड चेडर चीज। ठीक है, मिल्क एंड चेडर चीज। नंबर थर्ड पार्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन किस में ज्यादा है, प्रोटीन का सिंबल क्या है, ब्लैक वन। तो आपके चेडर चीज में आपका प्रोटीन ज्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा किस में ज्यादा है, चेक इट आउट। एग में है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, आपके ऑरेंजेस और ब्रेड में है। ठीक है, तो ऑरेंज में ज्यादा है आपका, सॉरी कि आपके प्रोटीन किस में ज्यादा, चेडर चीज में हो गया आपका सबसे ज्यादा। ठीक है, ब्लैक पोर्शन एंड ऑरेंज। ओके, उसके बाद देखिए वाटर का पोर्शन किस में ज्यादा है, आपका लैक्टिस में ज्यादा है, एंड देन आपका एग। ठीक है, आपका लैक्टिस हो गया, आपका मिल्क पोर्शन हो गया, आपका एग हो गया। ठीक है, यू कैन चूज एनी 2 फूड्स फ्रॉम दीज। ओके, किसी भी 2 का नाम लिख लें जिसमें ज्यादा पाया जा रहा है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 2 इज explain why you can eat lots of fruits and green vegetables when you are on a slimming diet। आप स्लिमिंग डाइट पर जब होते हो, आप जब डाइट कर रहे होते हो स्मार्ट होने के लिए, स्लिम होने के लिए, तो आप ज़्यादा वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्यों यूज करते हैं। द आंसर इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव नो फैट्स एंड वेरी लिटल कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आपके जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उसमें फैट्स पाए नहीं जाते, और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप जब स्लिमिंग डाइट पर होते हो तो फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज करते हो। ओके, नाउ टर्न द पेज, कम ऑन पेज नंबर 48। हियर क्वेश्चन नंबर 2, चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। चीज मिल्क से बनी है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। चीज मिल्क से ही बनी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, चीज और मिल्क में डिफरेंस क्या है। मिल्क कॉन्टेन लेस फैट्स देन चीज। मिल्क में फैट के मुकाबले, जो फैट्स हैं वो चीज के मुकाबले में कम होते हैं। इट ऑल्सो हैज सम कार्बोहाइड्रेट्स विच चीज डज नॉट। चीज कॉन्टेन मोर प्रोटीन। ओके, आपके जो चीज में है वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, जबकि आपके जो मिल्क है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जबकि चीज में नहीं पाया जाता। उसके साथ साथ चीज में प्रोटीन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मिल्क। तो डिफरेंस क्या है, आपका मिल्क में लेस फैट होता है, आपके मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि चीज में नहीं होता। और अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो चीज में ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं एज कंपेयर टू योर मिल्क। ओके, नंबर 4, बटर कंटेन 0% कार्बोहाइड्रेट। एक बटर है उसमें 0% कार्बोहाइड्रेट्स है, 0.5% प्रोटीन है, 81.5% फैट्स है एंड 18% वाटर है। ड्रॉ अ डायग्राम ड्रॉ करें टू शो दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए। सो हियर इज अ डायग्राम। द ब्लैक पोर्शन, इससे बिल्कुल ब्लैक कर दें आप प्रोटीन को। आपको पता है आपने किससे शो किया था, बिल्कुल ब्लैक पार्ट से शो किया था। ठीक है, आप इसे बिल्कुल डार्क ब्लैक कर दे। दैट इज प्रोटीन। आपका प्रोटीन कितने परसेंट था, दैट इज 0.5% आपका प्रोटीन है। दिस इज योर प्रोटीन, दैट इज 0.5%। 81.5% is fats, this is your fat, and 18% water, that is your 18% water। वाटर को व्हाइट से रिप्रेजेंट किया है, फैट्स को आपका डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, आप इसको डॉट से फिल करते हैं और प्रोटीन आपका बिल्कुल ब्लैक पार्ट। ओके, और आपका कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, 0%, यानी कि मौजूद ही नहीं है। ओके, द फॉलोइंग टेबल वॉज ऑन अ पैकेट ऑफ राइस। आप एक पैकेट ऑफ राइस लें, उस पर ये टेबल बना होगा। ठीक है, एनर्जी कितनी है, 1403 किलो जूल्स, और कैलोरीज कितनी है, 331 किलो कैलोरीज। प्रोटीन कितने हैं, इतने हैं, आपको डिटेल दी गई है। ठीक है, ओके, हियर आर फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टेबल। नंबर 1,
How much dietary fiber roughages is there in this rice? Okay, राइस में कितने डाइटरी फाइबर्स या roughages प्रेजेंट हैं? Here is fiber. फाइबर कितने हैं? 14.1 ग्राम. ओके, आपने लिख दिया. Now come on. Okay, student, I have done this one question for you. I am giving you the homework. What you have to do, you have to solve the rest of the question, which is on page number 49 and 50 by yourself. Inshallah, I will discuss the answer of these questions in your next lecture. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and do your work प्रॉपरली एंड ऑन टाइम. अपना टाइम पर काम कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप आराम से टैली कर सकें कि वेदर यू हैव गिवन द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर. ओके स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल कंप्लीट द गिवन टास्क विच आई हैव गिवन टू यू. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. फी अमान अल्लाह.